Very good morning, students. So, today we are going to discuss the exercise of chapter number 10. Notes I have given you notes in the document section, so tally them. And in the notes, the question number 3, that is the path of rays. This you have to do yourself. Draw it in your book and notebook, and then give it to me. Okay. Then exercise of chapter number 10. Firstly, we are going to do the fill in the blanks. First is the ray of light passing from one medium to another does not bend. बेंड ही नहीं करिए इस पाथ अपने पाथ से. कब बेंड नहीं करेगी? जब उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? नॉर्मल पे होगा, है ना. एंड नॉर्मल इज जो रे ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल दोनों कंसाइड करेंगी. अब जब दोनों कंसाइड करेंगी, दोनों एक दूसरे पे ही होंगी, तो फिर उनके बीच का एंगल जो होगा दैट विल बी 0 डिग्री. देन द मोर इज द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ गिवन मीडियम. जितनी डेंसिटी ज़्यादा होगी गिवन मीडियम की, स्पीड ऑफ लाइट विल बी स्लोअर, उतनी कम होगी. The phenomena of the splitting of white light into 7 colors is known as the phenomena of dispersion. You all know this. Then the point on the principal axis of a concave lens from where a beam of incident parallel ray appears to diverge is called the focus of the concave lens. बिकॉज वहाँ से वो पास नहीं कर रही है ना, वो हमें पीछे आती हुई दिखाई देगी फोकस वाले रास्ते पे. देन एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट डैश पॉइंट सो दैट द कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स इट्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द सेम साइज. सो रियल इन्वर्टेड सेम साइज की इमेज कहाँ बनती है? यू ऑल नो दैट दिस इज 2F पॉइंट. फाइन. सो नाउ वी आर मूविंग ऑन. True or false? Then the basic cause of refraction is the change in its speed of a light as it goes from one medium to another. So it is very true. In an optical denser medium, the speed of light is more than the speed of light in vacuum. So it is very wrong. Vacuum में तो speed ज़्यादा होगी और denser medium में कम होगी. So it is false. An incident ray always bends away from the normal when it passes from one transparent medium into another. So it is again false, क्योंकि हमेशा नहीं होता है ना ऐसे. जब हम it depends on denser and rarer medium कि किस में away होगी और किस में towards होगी. Then a coin kept at the bottom of an empty dry cup. अगर हम खाली कप में coin रखें then it appears to rise up. वो ऊपर आता दिखेगा when some water is poured into the cup. Yes, it is very right. You have seen the experiment of the coin. So it is true. When white light is dispersed by a glass prism, the yellow color bends in it more than the blue color. So it is wrong. Blue color नीचे होता है, yellow color ऊपर होता है. So blue color bends more than the yellow color. It is false. Then tick the correct option. Which of the following condition is not necessary for a change in the direction of propagation when a light rays grows from one medium to another? तो फर्स्ट वो कह रहा है इंसिडेंट एंगल 0 से ग्रेटर होना चाहिए, तो ठीक है. नहीं तो 0 डिग्री अगर होगा तो वो पाथ चेंज नहीं करेगा. दोनों मीडिया को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. येस. 2 मीडियाज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होना चाहिए. येस. ठीक है, नहीं तो रिफ्रैक्शन नहीं होगी ना. So the incident light rays must always have only the blue color. This is not the right. This is not the necessary condition. So light ray कोई भी हो जो हमारी simple white light होती है, that is white light, not necessary for the blue color. Then second, which of the following diagrams correctly shows the bending of light ray? देखो rarer denser to rarer जा रही हैं सारी rays. सो डेंसर टू रेयरर, फर्स्ट वन आप देखोगे अनडेविएटेड है. देन सेकेंड वन आप देखोगे कि रेयरर में अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रही है, तो इट इज़ करेक्ट वन. नीचे वाला जो है, नीचे वाले में जो ये है फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज़ थर्ड वन, वो टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट इज़ रॉन्ग. नीचे वाले दोनों रॉन्ग हैं.
ठीक है. सो फर्स्ट लाइन में जो सेकेंड ऑप्शन है, इट्स द करेक्ट वन. देन कम ऑन द थर्ड. एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे फॉर अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे के बीच में एंगल कितना होगा एज दे आर पैरेलल टू ईच अदर. दोनों पैरेलल है. सो एंगल आई और एंगल ई दोनों बिल्कुल इक्वल होते हैं. दैट्स वाई उनके बीच का डिफरेंस जो होगा दैट विल बी 0 डिग्री. फाइन. देन अब इसमें कौन सी करेक्ट इमेज है वो भी आप देख सकते हो. देखो बाहर सिर्फ एक रे तो निकलती नहीं है, तो इस वजह से दोनों ऊपर वाली रॉन्ग है. देन वी आर कमिंग ऑन द लोअर लाइन. Then see, in first figure it is saying that firstly red and then violet, and in the second it is violet and in the last red. So first one is correct because red की deviation सबसे कम होती है. It is having the fastest speed and violet is slowest in the prism. So in second line first option is correct. Fine. Then the fifth one, an incident ray passing through the optical center of a concave lens after reflection through it will. जो ऑप्टिकल सेंटर से लाइन जाती है पैरेलल नहीं होती है, प्रिंसिपल फोकस से नहीं जाती है, 2f से नहीं जाती है, इट गोज अनडेविएटेड, चाहे वो कनकेव लेंस हो या कन्वेक्स लेंस हो. देन वी आर कमिंग ऑन. When an object approaches a convex lens from infinity towards its focus, the image formed by it will keep on shifting. इन्फिनिटी से आप आ रहे हो फोकस तक, तो जैसे जैसे आप लेंस के पास आते जाओगे आपकी इमेज दूर जाती जाएगी. बस जब फोकस से आगे जाओगे तो वो उसी साइड पे आ जाएगी जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है. सो इसने इन्फिनिटी से फोकस तक कहा है. देन इट विल कीप शिफ्टिंग अवे फ्रॉम द लेंस. फाइन. फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. So Tanya's grandmother needs a lens to read small letters in her book. So उसके लिए क्या चाहिए उसको? Small letters को उसको पढ़ना है, और उसके लिए देखो स्मॉल लेटर्स को पढ़ना है, आपको बड़ी बनानी है इमेज. तो कनकेव लेंस तो किसी काम की नहीं है, क्योंकि कनकेव लेंस से तो डिमिनिश्ड इमेज बनती है हमेशा, है ना. सो दैट मीन्स फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में से कुछ आएगा. अब उसमें से भी हम देखते हैं क्या आएगा. Convex lens kept at a distance between f and 2f. f और 2f के बीच में जब आपका ऑब्जेक्ट पड़ा हो, अगर उसको पढ़नी है चीज़ें, तो उसके लिए मैग्नीफाई करना पड़ेगा ना इमेज को. तो f और 2f में नो डाउट मैग्नीफाई होता है, बट जो इमेज बनती है दैट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी. सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वो सारे उल्टे हो जाएंगे. सो तानियाज ग्रैंड मदर विल नॉट बी एबल टू रीड दोज वर्ड्स इन द बुक, है ना. सो तो फोर्थ ऑप्शन देखते हैं. अ कन्वेक्स लेंस केप्ट एट अ डिस्टेंस लेस देन इट्स फोकल लेंथ. तो फोकल लेंथ क्या होता है बेटा? ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस. सो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ है, और फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पे पड़ा है कन्वेक्स लेंस. सो व्हाट विल हैपन? दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन O एंड F, और O एंड F का आप देखते हो कि जो आपकी इमेज बनती है दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड. वर्चुअल है, इरेक्ट है और मैग्नीफाइड होती है. दैट्स एट दैट टाइम उनको सिर्फ जो लेटर्स हैं वो बड़े दिखाई देंगे, मैग्नीफाइड दिखाई देंगे और इरेक्ट दिखाई देंगे. देन शी विल बी एबल टू रीड द बुक वेरी क्लियरली. फाइन. सो दैट मीन्स द फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. Now we can see the exercise which I have provided you in document section. So एक बार जल्दी से इसको डिस्कस कर लेते हैं. Light propagates faster through a medium A than मीडियम बी. तो ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी? तो जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है उसमें उसकी स्पीड कम है, तो मीडियम बी की ज़्यादा है. देन स्टेट द कंडीशन विच
no change in the direction of the propagation of a light ray would takes place when it passes from A to B. When an incident ray is makes a right angle at the point of incidence, या अगर हम इंसिडेंट एंगल कहें तो वो 0 डिग्री होगा, क्योंकि नॉर्मल और उसके बीच में, नॉर्मल के ऊपर ही जाएगा ना, नॉर्मल और उसके इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होता है इंसिडेंट एंगल, सो दैट विल बी 0. Why does a pencil appear bent when it's partially dipped in water? So that is due to the refraction, because it is coming from air to water, that is rarer to denser, तो वो it will sorry from water to air, तो वो अगर water to air जा रहा है then it will bend away from the normal. अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो हमारी जो आई है उसको उसके बिल्कुल सामने देखेगी, इट कैन नॉट सी दैट द रे इज बेंडिंग. ठीक है. सो ड्यू टू दिस लाइट रेज दे अपियर टू कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट पोजिशन, और वो कहाँ है, पेंसिल के ऊपर है, दैट्स वाई इट सीम टू बी बेंड. दिस क्वेश्चन यू हैव टू डू योर सेल्फ. स्लैब देख के स्लैब में से आप सारी फिगर्स आप इसकी बनाइए. ठीक है. सो अपनी बुक में बना लीजिए, चाहे अपनी नोटबुक में बना लीजिए. Then when a spherical lens is held towards the sun, a sharp image is formed on a piece of black paper. So उसमें हम कौन सा लेंस लेते हैं, मैग्नीफाइंग लेंस लेते हैं ना, तो दैट इज कन्वेक्स. मैग्नीफाइंग, एक कन्वेक्स लेंस मैग्नीफाइंग लेंस की पोजीशन कब लेता है, when it is between optical center and focus. ठीक है. What name is given to the distance between the spherical lens and the black paper? So it is the focal length. कहाँ से कहाँ तक, ठीक है, O से F तक लेके जाएंगे, बिकॉज दैट इज द पॉइंट इमेज इन्फिनिटी से आ रही है, तो सन की इमेज फोकस होगी एक पॉइंट पे, दैट इज द पॉइंट इमेज. सो कौन सी जगह पे पॉइंट इमेज आती है, दैट इज फोकस. तो ब्लैक पेपर और उसके बीच का डिस्टेंस होगा फोकस और उसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस, दैट्स व्हाई इट इज फोकल लेंथ. So what is the relative advantage of using black paper rather than a white paper? Black paper लेने का क्या फ़ायदा है वाइट पेपर से, बिकॉज ब्लैक पेपर जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा बहुत अच्छे से, जबकि जो वाइट कलर होता है वो तो रिफ्लेक्ट करता है एनर्जी को, है ना. दैट्स वाई हम कहते हैं कि गर्मियों में ब्लैक कलर कम पहनना चाहिए, वाइट कलर पहनो ताकि गर्मी कम लगे. Then this is the question number 5. What kind of lens would form an inverted or magnified image? Convex lens. Erect and magnified image, ये भी लास्ट वाले उसमें होता है, erect and magnified convex lens. Inverted और diminished, जितनी भी inverted images हैं वो तो सारी convex की हैं, बाकी इरेक्ट भी और डिमिनिश्ड भी हो, दैट इज ओनली थ्रू कनकेव लेंस. नाउ यू हैव टू ड्रॉ अ लेबल्ड रे डायग्राम ऑफ कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस जब वो वर्चुअल इमेजेस फॉर्म करते हैं. सो कन्वेक्स लेंस का बिटवीन O एंड F, और कनकेव का तो आप कोई भी बना सकते हो. So a coin is placed at bottom of clear glass vessel and observer moves herself to the position where the coin just goes out of sight. कि एक कॉइन बॉटम पे पड़ा है और उसे हम ही मान लो हमने वहाँ तक गए जहाँ तक उसकी हमें वो दिखना बंद हो गया. सो जैसे ही हमने उसमें वाटर पोर किया, इट ग्रेजुअली कम्स अप, उसको दिखने लग गया. देन व्हाट वुड शी ऑब्जर्व्ड? Once water is filled, the coin becomes visible. Name the phenomena involved in his observation. कौन से phenomena है? This is refraction of light. Now the next is draw a neat labeled diagram. Just justify your answer, and this is the labeled diagram. Fine. Now come on, question number 2. In the following figure, identify the light ray that would be correct emergent refracted ray. इन सभी में कौन सी करेक्ट होगी? सो आप इसमें पी क्यू आर आप अपनी बुक खोल के देखिए. फर्स्ट इज पी, देन क्यू, देन आर. ठीक है. सो इसमें फिगर ए में फर्स्ट इज पी, क्यू एंड आर. अब एयर से ग्लास में आ रही है, स्लैब है ना, ये ग्लास है,
तो फिगर ए में द रे विल बी कुछ थोड़ा सा उससे इंसिडेंट रे के थोड़ा सा पीछे और पैरेलल, ठीक है। सो इट विल बी पी। देन एयर से वाटर में जाएगी तो पी ऊपर वाली है, सबसे ऊपर वाली, देन क्यू और नीचे वाली आर। सो इसमें से इन बी व्हाट विल बी द emergent ray angle क्या होगा? air is rarer, water is denser, so R will be the answer because it will move towards the normal. Then in figure C it is again, देखो ग्लास से एयर में जा रही है, सो डेंसर से रेयर में जा रही है। पी क्यू आर फर्स्ट से स्टार्ट हो रहे हैं, then you can see that it will bend away from the normal, again it will be R. Please look it from your book. White light is made to fall on one face of the glass prism. So आपको dispersion का emergent ray का ray diagram बनाना है, so you have to draw this, ठीक है। और ये बहुत अच्छे से बनाइएगा प्लीज़। With the help of a suitable diagram, explain the meaning of the terms. So center of curvature, optical center, focus, इन सब की आपको definitions देनी है, समझा मैं पहले चुकी हूँ। We are given a convex lens of focal length 20 centimeter. These questions are very important. Focal length 20 centimeter है, that means O से F का distance 20 है. So draw the ray diagrams to show the nature, size and position of the image formed when the object is kept at a distance of 55 centimeter. अब now 55 centimeter का मतलब क्या है? 55 centimeter का मतलब है उससे डबल से ज़्यादा। So in this is the question where focal length is given 20 centimeter और आपको जो ऑब्जेक्ट रखना है उसकी पोजीशंस बता रखी हैं 55 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर। बेटे आपको अपनी बुक पे बनाना नहीं है कि ये 20 सेंटीमीटर जितना आप स्केल से मेजर करके बनाओ, 55 सेंटीमीटर तो आएगा ही नहीं ना आपकी बुक पे, नोटबुक पे। तो आपको जस्ट एक आइडिया लेना है कि अगर फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है तो जो 2F पॉइंट होता है वो उसका डबल होगा ना। फोकल लेंथ O से F तक का डिस्टेंस 20 हो गया, ठीक है। O से F तक का डिस्टेंस 20 हो गया, सो 2F उससे डबल होगा तो 20 का डबल 40। अब ये 40 से ऊपर है 55 40 से ऊपर है तो हम 2F से भी पीछे रखेंगे इसको, तो आपका फर्स्ट केस ये वाला होगा, ठीक है। बी केस 35 है, दैट मीन्स 20 और 40 के बीच में है, 20 F पे है, 20 पे F है और 40 पे 2F है, तो उनके बीच का डिस्टेंस, सो बी पॉइंट आपका ये होगा, ठीक है। F और 2F। देन 15 सेंटीमीटर तो फोकल लेंथ से भी छोटा हो गया, F से भी छोटा, तो F के अंदर आप रखोगे तो आपकी जो इमेज आएगी दैट विल बी दिस between F and 2F. I hope that it is clear. Then next question, we are given a concave lens of focal length 15 centimeter. Draw ray diagrams to show that. बिल्कुल सेम पे है, concave lens लेना है बस। अब आपको focal length 15 है तो एक तो B तो सीधा फोकस पे ही रखवा रहा है, ठीक है। देन जो A है वो 30 सेंटीमीटर यानी 2 पे है, 2F पे है, सो फर्स्ट में 2F वाली इमेज बनाएंगे, B पे F वाली इमेज बनाएंगे और C 10 मतलब O और F के बीच में, ठीक है जी। सो ये आप बनाएंगे, F वाली आप अपने आप बना के देखेंगे B पार्ट। व्हाट टाइप ऑफ लेंस यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास? मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं? कन्वेक्स। और कहाँ रखनी होती है आपको ऑब्जेक्ट रखना होता है और F के बीच में। देन द रे डायग्राम आपको बनाना है, दिस इज द रे डायग्राम, फाइन। नाउ दीज आर द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, रीड देम and if you have find any problem then ask it to me. And after the extra questions, this is the homework as well as very mandatory homework, very important. You are having the board questions. See, these are the board questions, chapter 10 board questions. So board questions आपने सारे करने हैं because वो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा परसेंटेज
हम प्रोबेबिलिटी रखते हैं कि वो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। सो डू सॉल्व देम, ताकि यू शुड ऑल्सो नो दैट आपको आ रहा है या नहीं, ठीक है बेटा। थैंक यू।